جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں تیری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا۔ جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں تیری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے۔ تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ڈائز پہ جو میرے ساتھی ہیں ان سے بھی دعا مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے ارشاد کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ اب یہاں سے وہاں تک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں میں جو کہنے جا رہا ہوں، اس دعا میں خود کو شامل کریے گا، خاموش مت رہیے گا۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ تھک گئے ہیں آپ؟ کیا بات ہے، تھک گئے ہیں آپ؟ کیا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ تھک گئے ہوں۔ اگر تھک نہ گئے ہوں تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں زندہ دل لوگوں کے شہر میں کھڑا ہوں، میں حوصلہ مند لوگوں کے شہر میں کھڑا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جو وہاں اگر کوئی ایک بچہ مرتا ہے تو یہاں نہ جانے کتنی ماؤں کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ میں اس آنسو کو زبان دے رہا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے کمزور داد لگی آپ کی، مجھے داد نہیں چاہیے اس پہ، لیکن مجھے دعائیں ضرور چاہیے تاکہ ان بچوں تک پہنچے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے،
खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह, क्या वाह वाह। कौन कहता है कि कौन। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हफीद बिन ज़हर अतीब की बहन और भांजी, ये एक मशहूर तबीब हैं। इनकी बहन और भांजी हिकमत का इल्म खूब रखती थीं और एक बादशाह था, खलीफा उसके मुहल्लात का इलाज उन्हीं के सुपुर्द था। फ़ायदा, ये इल्म तो औरतों में से बिल्कुल जाता रहा। इस इल्म में भी अगर अच्छी नीयत हो और लालच और दगा ना करे कि कोई हराम दवा ना खिलावे, दीन के कामों में गफलत ना करे, तो बड़ा सवाब है और मखलूक का फ़ायदा है। अब जाहिल दाइयाँ औरतों का सत्यानाश करती हैं। अगर इल्म होता तो ये ख़राबी क्यों होती। जिन औरतों के बाप भाई मियाँ हकीम हैं, वो अगर हिम्मत करे तो उनको इस इल्म का हासिल करना बहुत आसान है। इमाम यजीद बिन हारून की लौंडी, ये हदीस के बड़े इमाम हैं। आखिर उम्र में निगाह बहुत कमज़ोर हो गई थी, किताब ना देख सकते थे। इनकी ये लौंडी उनकी मदद करती, ख़ुद किताबें देखकर हदीसें याद करके उनको बतलाया करती। फ़ायदा, सुबहान अल्लाह, इस ज़माना में लौंडियाँ बांदियाँ आलिम होती थीं। अब बीबियाँ भी अक्सर जाहिल हैं। खुदा के वास्ते इस धब्बा को मिटाओ। इब्न समाक कोफ़ी की लौंडी, ये बुज़ुर्ग अपने ज़माना के बड़े आलिम हैं। उन्होंने एक दफ़ा अपनी लौंडी से पूछा, मेरी तकरीर कैसी है। उसने कहा, तकरीर तो अच्छी है, मगर इतना आयब है कि एक बात को बार बार कहते हो। उन्होंने कहा, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, कम समझ लोग भी समझ लें। कहने लगी, जब तक कम समझ समझेंगे, समझदार घबरा चुकेंगे। फ़ायदा, किसी आलिम की तकरीर में ऐसी गहरी बात समझना आलिम ही से हो सकता है। इससे मालूम होता है कि वो लौंडी आलिम थी। बीवियों, लौंडियों से तो कम मत रहो, खूब कोशिश करके इल्म हासिल करो। घर में कोई मर्द आलिम हो तो हिम्मत करके अरबी भी पढ़ लो। पूरा मज़ा इल्म का इसी में है कि तुमको तो लड़कों से ज़्यादा आसान है, क्योंकि कमाना धमाना तो तुमको है नहीं। इत्मीनान से इसी में लगी रहो। रहा सीना पिरोना वो हफ्तों में सीख सकती हो, सारी उम्र क्यों बर्बाद करती हो। इब्न जौज़ी की फूफी, ये बुज़ुर्ग बड़े आलिम हैं। इनकी फूफी उनको बचपन में आलिमों के पढ़ने पढ़ाने की जगह ले आया करती थी। बचपन ही से जो इल्म की बातें कान में पड़ती रहीं, माशा अल्लाह 10 बरस की उम्र में ऐसे हो गए कि आलिमों की तरह वाज कहने लगे। फ़ायदा, देखो अपनी औलाद के वास्ते इल्म दीन सिखलाने का कितना बड़ा ख्याल था। वो बड़ी बूढ़ी होंगी, खुद ले गईं। तुम इतना तो कर सकती हो कि जब तक वो दीन का इल्म न पढ़ लें, अंग्रेज़ी में मत फंसाओ, बुरी सोहबत से रोको, इस पर तंबीह करो, मकतब में मदरसे में जाने की ताकीद करो। अब तो ये हाल है कि अव्वल तो पढ़ाने का शौक़ नहीं, और अगर है तो अंग्रेज़ी का, कि मेरा बेटा तहसीलदार होगा, डिप्टी होगा, चाहे क़यामत में दोज़ख में जाए और माँ बाप को भी साथ ले जाए। याद रखो कि सबसे मुक़द्दम दीन का इल्म है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इमाम रबीअतुर राय की वालदा, ये भी बड़े आलिम हुए हैं। इमाम मालिक और हसन बसरी जो आफ्ताब से ज़्यादा मशहूर हैं, वो दोनों इन्हीं के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम फ़रोख है। बनी उम्मिया की बादशाही के ज़माना में वो फ़ौज में नौकर थे। बादशाही हुक्म से वो बहुत सी लड़ाइयों पर भेजे गए थे। उस वक्त ये अपनी वालदा के पेट में थे। उनको 27 बरस इस सफ़र में लग गए। ये पीछे ही पैदा हुए और पीछे ही इतने बड़े आलिम हुए। चलते वक्त उनके वालिद ने अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ दी थी। इस आली हिम्मत बीवी ने सब अशरफियाँ उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दी। जब उनके पास 27 बरस पीछे लौट कर आए तो बीवी से अशरफियों को पूछा। उन्होंने कहा, सब हिफाजत से रखी हैं। इस अरसा में हज़रत रबिया मस्जिद में जाकर हदीस सुनाने में मशगूल हुए। फ़रोख ने जो ये तमाशा अपनी आँख से देखा कि मेरा बेटा एक जहान का पेशवा हो रहा है, मारे खुशी के फूले न समाए, मारे खुशी के फूले न समाए। जब घर लौट कर आए, बीवी ने पूछा, बतलाओ 30,000 अशरफियाँ ज़्यादा अच्छी हैं या ये नेमत। वो बोले, अशरफियों की क्या हकीकत है। जब उन्होंने कहा कि मैंने वो अशरफियाँ इसी नेमत के हासिल करने में ख़र्च कर डाली, उन्होंने निहायत खुश होकर कहा कि खुदा की कसम, तूने अशरफियाँ ज़ाय नहीं की। फ़ायदा, कैसी बीबियाँ थीं, इल्म दीन की कैसी कदर जानती थी कि 30,000 अशरफियाँ अपने बेटे के इल्म हासिल करने में ख़र्च कर डालीं। बीवियों, तुम भी खर्च की परवाह मत करो, जिस तरह हो औलाद को इल्म दीन हासिल कराना। इमाम बुखारी की वालदा और बहन, इमाम बुखारी के बराबर हदीस का कोई आलिम नहीं हुआ।
इनकी उम्र 14 साल की थी जब उन्होंने इल्म हासिल करने का सफ़र किया तो उनकी वालिदा और बहन खर्च की ज़िम्मेदार थीं। फ़ायदा, भला माँ तो वैसे भी खर्च दिया करती हैं, मगर बहन जिसका रिश्ता ज़िम्मेदारी का नहीं है उनको क्या गर्ज थी। मालूम होता है कि उस ज़माना में बीवियों में इल्म दीन का नाम लिया और ये अपना माल व मता कुर्बान करने को तैयार हो गई। बीवियों, तुमको भी ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म के साथ, तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद।